गूगल जब एसईओ में एआई लेकर आया था ना, तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था और यही सेम चीज अब मेटा करने जा रहा है, क्योंकि उसने इतने बड़े अपडेट्स अनाउंस किए हैं ना कि मैं खुद शॉक में आ गई थी। और अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप किसी और का बिजनेस रन कर रहे हो तो मेक श्योर करो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मेटा के ये सारे अपडेट्स आपके लिए जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ना मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कुछ चीजें बोली थी जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप वो वीडियो देखो और उसके बाद मैं वो आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। One is just the transformation of the ad system, right? Where it used to basically be, if you wanted to run ads, you had to come up with your own creative, and you had to come up with who you wanted to reach. You had to kind of sense where your customers were and do a lot of your own measurement. And over time, we've just automated more and more of this stuff. So the basic end goal here is any business can come to us, say what their objective is. I want to get new customers to do this thing. I want to sell these things. Tell us how much they're willing to pay to achieve those results, connect their bank account, and then we just deliver as many results as we can. And in a way, it's like the ultimate business results machine. It's probably, I think, going to be one of the most important and valuable AI systems and business systems that gets built. Now, obviously, there's a whole ecosystem around this stuff. No one company is going to do everything in advertising. There are all these companies that specialize in doing creative work, and they'll keep on doing that. But it will be possible in the future that if you're running a small business, or maybe even a larger one, you won't even need to have to start off in a creative. Maybe you can, maybe you'll get better results, but you could just come with a goal and how much that's worth to you, and we'll just deliver results across our platform. So I think that's cool, and I think it's going to pretty dramatically change what advertising is. Historically, advertising has been about 1% of global GDP, but that includes all the stuff that's really inefficient. Like you buy a billboard, and like 3/4 of the people who see the billboard are not target customers. So when you actually can change it so it turns into this AI business results machine, I think that just like the overall internet economy is going to grow, I would guess that what we currently think of advertising will grow it as a field and will be a larger portion of global GDP. जैसा कि आपने वीडियो देखी, यहाँ पर मार्क भैया ये बोलना चाह रहे हैं कि अब मेटा एडवर्टाइजिंग पूरी की पूरी तरीके से एआई ऑटोमेशंस पे चली जाएगी। मतलब अभी तक हम बहुत सारे एआई फीचर्स टेस्ट आउट कर रहे थे, वो अपने एंड से कई सारे एआई फीचर्स रोल कर रहे थे और कई सारे हटा भी रहे थे, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब मार्क भैया ये कहना चाह रहे हैं कि अब टारगेटिंग से लेकर एड क्रिएटिव बनाने से लेकर एड कॉपीज तक सब कुछ मेटा का एआई करके देगा। मतलब एज अ बिजनेस ओनर आपका काम सिर्फ यही है कि आप एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करो, कुछ पैसे डालो और अपना ऑब्जेक्टिव बता दो कि आपको सेल्स चाहिए, लीड चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। मेटा का एआई सारा का सारा प्रोसेस खुद से करेगा और आपको रिजल्ट्स भी ला कर देगा, क्योंकि हमारी ये जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की एडवर्टाइजिंग मार्केट है ना, इसको ये पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। अब अगर आप इसमें मेरा ओपिनियन पूछो तो अभी करंटली जो मेटा में एआई फीचर्स है ना, वो डेफिनेटली अप टू द मार्क नहीं है। मतलब हम इसे बहुत समय से टेस्ट आउट भी कर रहे हैं, चेकआउट भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर आप पूरी तरीके से एआई पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हम अभी भी मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू मैनुअल एड कैंपेन्स ही रन कर रहे हैं और उससे हमें अभी भी बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब मार्क भैया ने खुद कह दिया है कि आप टोटली एआई पर डिपेंडेंट हो जाओ। मैं पर्सनली अभी के टाइम पर मेटा एआई पर टोटली डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये चीज हो जाती है तो एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज आप अभी एक्सेप्ट कर लो कि एआई मार्केट को, किसी भी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज जरूर करेगा, क्योंकि जब ये मोबाइल फोन्स भी आए थे तो हमें इसे यूज करना नहीं आता था, हमने धीरे धीरे अडेप्ट किया। लेकिन एआई बहुत ही जल्दी आएगा और आपको बहुत जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा। अब मेटा इसमें क्या अपडेट्स लेकर आता है इसके बारे में तो हमें कोई आइडिया है नहीं, लेकिन जब भी आएगा ये मार्केट को डिस्टर्ब जरूर करेगा। और एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी एजेंसी फाउंडर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें एड्स रन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एआई अडेप्ट करना भी उनके लिए डिफिकल्ट होगा। अब हम धीरे धीरे करके बाकी अपडेट्स में जाते हैं। अभी जो रिसेंट में बहुत बड़ा अपडेट मेटा ने अनाउंस किया है वो है क्रिएटर मार्केट प्लेस। अभी कुछ महीने से मेटा क्रिएटर मार्केट प्लेस की एपीआई टेस्ट आउट कर रहा है, जो क्रिएटर्स को और बिजनेसेस को साथ में लेकर आएंगे और उन्हें कोलैबोरेट करने का मौका देंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रिएटर्स और बिजनेसेस की बात नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे उन्होंने अभी अनाउंस किया कि अगर कोई रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, तो आप उस वायरल रील में अपने ऐड को इंटीग्रेट कर सकते हो। जब भी क्रिएटर मार्केट प्लेस एक्सेसिबल होता है, आप उसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो, ट्रेंड्स का सेक्शन दिखेगा। तो ये आपको बताएगा कि पिछले 24 आवर्स में, पिछले 7 डेज में या 30 डेज में कौन सी ऐसी रील है जो सबसे ज्यादा वायरल जा रही है, और आप चाहो तो आप उसे अपने बिजनेस के हिसाब से कैटेगराइज भी कर सकते हो और वो वायरल रील पर आप अपने एड्स रन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये स्निपेट लॉन्च किया कि ये वाली एक वायरल रील चल रही है, इस वायरल रील के जस्ट बाद आपका एड शोकेस होने लगेगा। अब मैं ना इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको बताती हूँ। सपोज करो आपका एक SaaS सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप मार्केटिंग ऑटोमेशंस करवाते हो, तो अगर मेरी एज अ डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर कोई रील बहुत ज्यादा वायरल जाती है और उसके जस्ट बाद आपका SaaS सॉफ्टवेयर पिच किया जाता है, तो आपको ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी और अल्टीमेटली आपकी कन्वर्जन्स में इंक्रीज आएगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली सेम ऑडियंस को टारगेट कर
कर रहे होगे। तो मेटा का ये जो नया वेंचर है क्रिएटर मार्केट प्लेस, ये एड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप ये तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ हर एक क्रिएटर का व्यूज, उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन, उनकी रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, वो सारी चीजें चेक करके भी उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको पार्टनरशिप एड्स रन करने हैं किसी भी क्रिएटर के साथ, तो आपके पास अब ऑप्शन रहेगा। अभी अगर हम पार्टनरशिप एड्स मेटा एड्स के थ्रू लॉन्च करते हैं तो आपके बिजनेस का नाम प्लस उस क्रिएटर का नाम इन कोलैबोरेशन दिखाया जाता है, लेकिन अब ये ऑप्शनल हो गया है। आप चाहो तो अपने बिजनेस का नाम शोकेस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि वो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक दिखे तो आप अपने बिजनेस का नाम नहीं भी दिखा सकते हो। अब मैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट बताती हूँ। मेटा ने ना थ्रेड्स में भी एडवर्टाइजिंग लॉन्च कर दी है। अभी आप मेटा एड्स मैनेजर में प्लेसमेंट के सेक्शन में देखोगे तो आपको थ्रेड्स का ऑप्शन दिखने लगेगा। और पहले अप्रैल के टाइम में उन्होंने सिर्फ ग्राफिक एड्स लॉन्च किए थे, लेकिन रिसेंटली अब आप उसमें वीडियो एड्स को भी रन कर सकते हो। अब ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि थ्रेड्स के 350 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिस मार्केट को अभी तक बहुत कम लोगों ने टैप किया है, क्योंकि ये एक नया अपडेट है। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी वहाँ ऑडियंस टेस्ट आउट कर सकते हो, क्रिएटिव टेस्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ना कि मेटा का कौन सा अपडेट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है तो वो ये वाला होने वाला है। अभी आप देखोगे कि मेटा ना बहुत सारे फीचर्स को एड्स मैनेजर में टेस्ट आउट कर रहा है, जैसे मल्टीपल प्लेसमेंट लेकर आ रहा है, सेल्स कैंपेन में एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन आ गए हैं, एडवांटेज प्लस लीड्स कैंपेन आ गए हैं। हम हमारे क्रिएटर्स को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बहुत ही अनलिमिटेड चीजें हैं जो अभी हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया ट्रायल फीचर ये लॉन्च कर रहे हैं वो है नोटिफिकेशंस का। मतलब अब आप प्लेसमेंट के सेक्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नोटिफिकेशन एड्स भी रन कर सकते हो। मैं इसे आपको एक बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आप देखते होगे कि स्विगी या फिर जोमेटो या फिर इंस्टामार्ट आप कभी भी चलाते हो तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, पुश नोटिफिकेशंस उस पर्टिकुलर ऐप के, और वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उनके बेसिकली जो मैसेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन अब आप ये सेम चीज़ अपने बिजनेस के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर पुश नोटिफिकेशन वाला ऐड रन करना है, तो मैं क्या करूँगी, प्लेसमेंट में नोटिफिकेशन ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी ना उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे ऐड का नोटिफिकेशन आएगा, और वहाँ से डेफिनेटली हमारी कन्वर्जन आएंगी, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन एक अलग ही सेक्शन ऑफ प्लेसमेंट है। और ये पता है सबसे ज्यादा काम कहाँ पर आएगा, रीटारगेटिंग कैंपेन्स में। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक ऐड लॉन्च किया जो 100 लोगों ने देखा और 20 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। अब मैं रीटारगेटिंग कैंपेन में उन 20 लोगों को नोटिफिकेशंस के थ्रू रीटारगेट कर सकती हूँ, जहाँ पर अबैंडन्ड कार्ड के मैसेजेस शेयर कर सकती हूँ या फिर कुछ भी नया ऑफर बता सकती हूँ, और वहां से कन्वर्जन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। इस पे मेटा ने एक स्निपेट लॉन्च किया था। अगर कोई एक ब्रांड कोई पुश नोटिफिकेशन ऐड रन करता है तो वो ऐसा दिखेगा, और उसी के साथ साथ अगर उसको कोई क्लिक करता है तो सीधा वो आपके पेज या फिर ऐड पर पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं एक और अपडेट की जो ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, और वो है डायनेमिक एड क्रिएटिव्स में ऑटोमेटिक ओवरलेस। अगर आप मेटा एड्स मैनेजर में एड्स रन करते हो या आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि कैटलॉग एड्स में डायनेमिक ओवरलेस का जो ऑप्शन है ना वो बहुत समय से है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वहां पर आप सिर्फ स्पेसिफिक लेयर्स यूज कर सकते थे, फॉर एग्जांपल प्राइस टैग या फिर ऐसी कोई भी चीजें जिसे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी डायनेमिक ओवरलेस में इन्होंने नया फीचर अनाउंस किया है, जहां पर आप अपनी प्राइसिंग, सेल प्राइस, फ्री शिपिंग और इसी के साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस, कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, ये सारे ओवरलेस टेस्ट आउट कर सकते हो। और हर एक कैटलॉग ऐड में अलग अलग टाइप के ओवरलेस का भी यूज कर सकते हो, और उन्हें कलर्स के मैटर में या फिर उनके ग्राफिक के मैटर में उन्हें चेंज भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आप अपने कैटलॉग एड्स को रीटारगेटिंग कैंपेन्स के लिए या फिर किसी भी टाइप के सेल्स कैंपेन के लिए और भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो और पर्सनलाइज बना सकते हो। ये तो कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स थे, लेकिन कुछ और छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं। जैसे मेटा लाइव में पार्टनरशिप एड्स टेस्ट आउट कर रहा है, जहां पर अगर कोई क्रिएटर इंस्टाग्राम पर लाइव आता है तो कोई भी ब्रांड उस लाइव पे पार्टनरशिप एड्स रन कर सकता है। ये फीचर कैसा जाएगा वो तो हमें बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, टेस्टिंग फेज में। इसी के साथ साथ एक और फीचर इन्होंने लॉन्च किया है, वो है आपका जो एड क्रिएटिव है उसको हर एक प्लेसमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, जो वो अभी भी करता है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं जो अभी बहुत जल्दी हमें मेटा एड्स मैनेजर में दिखने लगेंगे। इसके अलावा कुछ
और इन्होंने फीचर्स लॉन्च किए हैं, जैसे आपका एड क्रिएटिव वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देंगे, जो ये फीचर ऑलरेडी अभी हमें मेटा एड्स मैनेजर में दिखता है, लेकिन उसमें वो और इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे अपडेट्स हैं, ये तो हमें दिखते रहते हैं मेटा एड्स मैनेजर में। बड़े अपडेट्स में कवर कर चुकी हूँ। इन अपडेट्स के बारे में स्पेसिफिकली मार्क भैया ने जो शुरुआत में बात की है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताकर जाना। मुझे आपके ओपिनियंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगी। और अभी आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख रहे होंगे जहाँ पे लोग कह रहे हैं मेटा एड्स में करियर खत्म हो गया है, मेटा एड्स डेड है। तो एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा लेकर चलो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पर काम करने का जो तरीका है वो चेंज होता है, लेकिन कोई भी चीज डेड नहीं होती है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो मेक श्योर करो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा कंटेंट लाने की गारंटी मैं लेती हूँ।